اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، فکری اور تہذیبی ارتداد، اس کے اسباب اور مسائل کا حل، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 36 ہے اور تہذیبی ارتداد کا سیریل نمبر 5 ہے۔ ہم نے کل ایک بات آپ سے بتائی تھی کہ دنیا میں جو تہذیبیں ہیں، سبھیتا ہے، وہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے کیا پلرز ہیں۔ تو اس میں نے 2 باتیں بتائی تھی آپ کو کہ آدمی اپنی ضرورت کے تحت اپنی تہذیب کو کیا کرتا ہے، ڈیولپ کر لیتا ہے۔ اس پر میں نے بہت سی مثالیں آپ کو دیا۔ اور دوسری وجہ ہوتی ہے کہ جو ہوشیار لوگ ہیں وہ اپنے مذہب کی چند باتیں تہذیب کے دائرے میں داخل کر دیتے ہیں کہ تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مذہب کا کوئی معاملہ ہے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ یہ ہماری سبھیتا ہے۔ جیسے میں نے وہ ہاتھ جوڑ کر آپ کو نمستے کرنے کے لیے، پیر چھونے کے لیے، یہ سب کو بھارتی سبھیتا کہا گیا، حالانکہ یہ مذہبی سبھیتا ہے۔ اچھا، تیسری بات جو خطرناک ہے، جو آدمی کو ابھی تو ہم اس کے بعد بات کریں گے نا کہ فکری جو تہذیبی جو ارتداد ہے اس کو کہاں سے شروع کیا جاتا ہے، کیسے کیسے وہ ہمارے ذہن پر کیا ہوتی ہے، غالب ہوتی ہے۔ وہ بات ابھی ہم اس کے بعد کریں گے انشاءاللہ۔ تو تیسری وجہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم غالب آ جاتی ہے، دنیا پہ رولنگ کرتی ہے یا سپر پاور بن جاتی ہے، تو نفسیاتی طور پر بقیہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے اچھی تہذیب ہے، بھلے اس میں فائدہ ان کو نظر آئے یا فائدہ نظر نہ آئے۔ یہ جو تہذیب ہوتی ہے اس میں ایک بڑا طبقہ کاپی کرتا ہے، اس کو عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس وہ کاپی کرنا ہے کیونکہ وہ غالب ہے۔ یہ جو قرآن مجید نے جگہ کہا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دین تمام ادیان پر غالب ہو، اس کی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ فکری تہذیب اور فکری ارتداد سے آپ متاثر ہی نہیں ہو۔ جب اسلام غالب رہے گا تو دنیا اسلام کی تہذیب سے متاثر ہوگی، آپ نہیں متاثر ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تمام دین پر کیا ہو جائے، اسلام غالب رہے۔ تو غالب ہونے کا مقصد حکومت ہی کرنا نہیں ہے، غالب ہونے کا مقصد عیاشی نہیں ہے، غالب ہونے کا مطلب کہ ہم سپر پاور بن جائے، نہیں۔ اس کی بیس یہ ہے کہ ہماری تہذیب کیا رہے، برقرار رہے، ہمارے لوگ اپنی تہذیب پر فخر کریں۔ بہرحال، تو یہ جو مغلوب قومیں ہیں اس میں ہم بھی شامل ہیں، اور جو لوگ غالب ہیں وہ ان کی باتیں ہم مان رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں۔ عرب دنیا میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ سال کے 11 مہینے گرمی ہوتی ہے تو کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہے، اور ٹمپریچر بھی 50 تک ٹچ کر جاتا ہے، جا کر کے کبھی کبھی 51 بھی ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ لوگ عرب لوگ یورپ جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں نے اپنے گھروں کی دیواریں جو ہے وہ شیشے کی بنا رکھی ہے۔ اب یہ آ کر کے اس کی کاپی کرتے ہیں، اور کاپی کر کے اپنے بلڈنگوں کی دیواروں کو شیشے کی بناتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنی ضرورت کے تحت بنایا تھا کہ دھوپ زیادہ سے زیادہ داخل ہو سکے۔ انہوں نے اس بات کی بدھی نہیں لڑائی کہ ہم کو اگر ہم شیشے کی بنائیں گے، دیکھیے کتنا نقصان ہے اس سے۔ جب شیشے کی دیوار ہوتی ہے تو دھوپ خوب آتی ہے، کمرے میں اگر 2 گھنٹے میں اے سی کسی کا ٹھنڈا کرتا ہے تو اب اس اے سی کو 4 گھنٹہ لگنا پڑتا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے دھوپ نے کیا کر رکھا ہے، مزید گرمی پہنچا رکھی ہے۔ تو ایسی جب کاپی ہوتی ہے نا تو بہت بری طریقے سے ہم متاثر ہوتے ہیں۔ میں عمان گیا، ایک صاحب کے یہاں مہمان تھا، تو انہوں نے اپنے ٹوائلٹ کے کموڈ کے پیر جہاں رکھنا تھا وہاں پہ ٹاول رکھی تھی نیچے، اور جہاں پہ وضو واش بیسن تھا وہاں بھی نیچے ٹاول رکھی تھی۔ تو میں نے کہا کہ یہ اپنے ٹاول کیوں رکھی ہے؟
अब लेकिन चूंकि यूरोप रखता है और यूरोप रखने की वजह यह है कि फर्श ठंडा होता है। अब इसके इनके पास कोई जवाब नहीं। मैंने कहा आपने ये जो कॉपी किया है इसका नुकसान आप देखिए, पहले तो वो पानी यूज नहीं करते, लिहाजा वो टावल नापाक नहीं हो पाता। तुम्हारे यहाँ ये टावल वही बंदा उस पर इस्तिंजा करेगा, फिर उसके बाद पैर धुलेगा, फिर उसका पानी होगा, और ये कभी सूखेगा ही नहीं, ये कभी सूखेगा नहीं, क्योंकि सेंट्रल एसी पूरा घर है और हमेशा ये नापाक। हम जब इस पर वजू करने के बाद भी खड़े होंगे तो भी क्या होंगे, नापाक होंगे। हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा और हमने महज ये कि ये वो कर रहे हैं, लिहाजा अच्छा ही वही है जो वो कर रहे हैं। ये जो कॉपी हमारे ध्यान में आई, भारत भी करता है, मुसलमान सब लोग करते हैं कॉपी। तो इससे जो है ना, जैसे मैंने खाना खाने का बताया कि अब अभी कर्नाटक में कम है, लेकिन आपके यूपी चले जाइए तो बैठकर खाना खाने के लिए आपको अपील करनी पड़ती है कि भाई साहब कहीं टेबल लगवा दीजिए, हम बैठकर खाना खाना चाहते हैं। वो खड़े होकर खाना खाने की वजह क्या मैंने बताई, उनका सूखा खाना है, पैंट शर्ट पहने हुए हैं, वो बेचारे बैठने के लिए उनको प्रॉब्लम है, लिहाजा उन्होंने वो अपना सिस्टम अख्तियार कर लिया कि खड़े होकर खा लो, सूखा खाना है। आपके पास चटनी है, आपके पास ग्रेवी है, आपके पास सालन है, रोटी है, अब उसी एक प्लेट में बेचारा कभी रोटी रखता है, कभी सालन गिराता है, ये सब करता रहता है, लेकिन एक मर्तबा नहीं सोचता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो तीसरी बुनियादी वजह क्या है कि गालिब कौम की कॉपी बगैर सोचे समझे मगलूब कौम कर लेती है, और इस तरीके से वो उनकी सभ्यता और उनका कल्चर बनता चला जाता है। चौथी वजह ये खतरनाक है, ये जो नौजवान लड़के और लड़की, मैं एक मरतबा सिंगापुर में एक टैक्सी पे बैठा। अच्छा, मेरी आदत है जहाँ बैठना है पूछना है तुम्हारी आबादी कितनी है, यहाँ मुसलमान कितने रोते हैं, मस्जिदें कितनी हैं, कहीं भी जाते हैं। तो वो एक बूढ़ा आदमी था, रहा होगा 75 टैक्सी चला रहा था। तो मैंने देखा कि वो पार्क के किनारे लड़के लड़कियां सब अपना मौज मस्ती कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपको कैसा लगता है। तो वो बेचारा एकदम, मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं भावुक हो गया, मतलब उसकी आंखों में जो आंसू आ गए। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात है। उन्होंने कहा कि हमने कहा तुम्हारे बचपन में भी ऐसे होता था कि लोग रोड पे खड़े होकर के ऐसे प्यार करते थे। तो उसने कहा कि भाई साहब हमारी पूरी तहजीब क्या हो गई कि अमेरिका के नजर हो गई, और हमारे अब नौजवान, मैं इन सब, हम तो बचपन में इन सब चीजों को जानते भी नहीं थे कि ऐसा भी दिन हमको कभी देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा हमारी पोती है, वो हमसे आकर के कहती है कि दादा आज हमारा बॉयफ्रेंड आएगा और ये कमरा आप खाली कर दीजिए। तो उसने कहा ये सब जब मैं सुनता हूँ, लेकिन अब मेरे हाथ से पूरी तहजीब हमारी क्या हो गई है, निकल गई है। अमेरिका के एक बहुत बड़े आदमी ने इस पर पूरा आर्टिकल लिखा कि हमने क्या खोया इस तहजीब से और क्या पाया। उसने भी अपने बड़े दुख दर्द का इजहार किया। लेकिन चूंकि मामला नौजवानों का है, नौजवान लड़के लड़कियों को जो पसंद है अय्याशी के तौर पर, ये अय्याशी ज़हनी तौर पर भी हो सकती है, जिस्मानी तौर पर भी हो सकती है, लिबास के लिहाज से भी हो सकती है, वो चाह रहे हैं कि यही चीज क्या बन जाए, तहजीब बन जाए, और उन्होंने बना दिया। अभी अगर यूरोप के बाद इलाकों में, बात क्या सभी में है, कि अगर किसी लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं है तो वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है कि इसका बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़हनी तौर पर ये मरीज है। ये उसको, अभी एक आदमी अगर ऐलान कर दे कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूं जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो, तो ये जिंदगी भर कुंवारे रहेंगे, क्योंकि ऐसी लड़की ही नहीं मिलेगी। और उसका जब लड़की है तो लड़का भी वही हो गया। तो जो चौथी जो खतरनाक चीज आई, और अब हमारे पास भी आ गई है। आपको मालूम है बेंगलोर जैसे शहर में हमारे एक दोस्त हिंदी टीचर हैं, बहुत पुराने, वो इत्तेफाक से बेंगलोर में रहते हैं, तो कहीं से नंबर उनको मिल गया। तो 20-22 साल के बाद उन्होंने मुझे फोन किया कि, तो बहरहाल लंबी चौड़ी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप फला जगह आ जाइए, मुलाकात करेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे। हमने कहा चलो ठीक है, मैं बेंगलोर में चला गया। तो उन्होंने बताया कि सिराज भाई ये हॉस्टल है और इसमें लड़के और लड़कियां एक कमरे में रहते हैं, जबकि दोनों कोई न भाई बहन है, न कोई रिश्ता है, न मियां बीवी है। वो जो कल्चर वहां चल रहा था वो कल्चर यहाँ भी आ चुका है और बुरी तरीके से आ गया है। बड़े शहरों में अब इस बात की तमीज ही नहीं रह गई है। इसीलिए अब
जो इन मुल्कों में जो फॉर्म भरा जाता है कि आपकी वाइफ है या आपका इनका रिलेशन है या आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, क्या है उसके बाकायदा कॉलम लीगली तौर पर भर दिया गया है। ये जो चीज तहजीब हुई, इसके पीछे सिर्फ एक चीज है कि नौजवानों को जो अय्याशी पसंद है, उसी अय्याशी को उन्होंने क्या कर दिया, तहजीब बना दिया। अच्छा, दूसरी चीज उरियानियत है, कपड़े हैं जिनको मशरिकी तहजीब घर में भी नहीं इस्तेमाल कर सकती, बल्कि अगर मियाँ बीवी भी रहते हो घर में तो भी दिन में वैसे कपड़े नहीं पहन सकती। वो वैसे कपड़े पहनकर कहाँ घूमती हैं, बाजारों में घूमती है, सबके सामने घूमती है। तो ये जो उरियानियत का फैशन आया, ये भी नौजवानों की दहनी अय्याशी की बात है। और वो जो दूसरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप, एक किताब लिखी गई है हमारे लाइब्रेरी में है, अ, इस्लाम और जिन्स परस्ती, मौलाना सुल्तान यूसुफ साहब की किताब है, बहुत अच्छा लिखते हैं माशाल्लाह। तो उन्होंने वो पूरा यूरोप का सब कुछ एक एक चीज बताई कि ऐसे ऐसे तहजीब और ऐसे ऐसे उन्होंने अपने कल्चर को क्या किया है, डेवलप किया है। इसमें जो रिलेशनशिप होता है, जो मतलब लड़के लड़के साथ में रहते हैं, तो पहले तय होता है कि आप हमारे दोस्त हैं यहाँ तक के, मतलब यहीं तक आप हमको टच कर सकते हैं। अच्छा बताइए, आग और पेट्रोल बगल में रख दिया, दोनों लगा दिया, और बीच में आप कह रहे हैं कि इसको हम बढ़ने नहीं देंगे, बेवकूफी की बातें हैं, समझे। ऐसे ऐसे अलग अलग लफ्ज बाकायदा बनाए गए हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, ऐसे ऐसे लफ्ज बनाए गए हैं कि उससे उनके रिलेशन को वो बताना चाहते हैं कि हमारी रिलेशनशिप यहाँ तक है। वे जब शादी करना होता है तो कहते हैं कि हम इनको आजमा लें, हम इनके साथ रह सकते हैं, ये हमारे साथ रह सकते हैं, 4 4 साल 5 5 साल, 2 2 बच्चे हो जाते हैं, अभी आजमा रहे हैं। उसके बाद वो जहेज में लेकर के वो जो औरत है वो बच्चा भी लेकर जहेज में आती है। ये तहजीब जो डेवलप हुई, ये इसने हमारे लोगों को भी बहुत मुतासिर किया है। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, पूना में एक बहुत बड़ा कॉलेज है जो मुस्लिम मैनेजमेंट और मुस्लिम नाम पे चलता है। कम से कम मेरा अंदाजा है कि 20 22 हजार बच्चे हैं, हॉस्टल भी है। तो उसी नाम पे लोग अपने लड़के लड़कियों को उनके हॉस्टल में रखते भी हैं। तो मेरा प्रोग्राम था उसमें, तो एक मुफ्ती साहब है, उन्होंने मेरा प्रोग्राम रखवाया। तो वो जो कॉलेज में बाहर होता है वही उस कॉलेज में सब होता है। तो मैंने कह दिया कि आप मुझे दोबारा बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन ये जो आप मुसलमानों का इस्तेहसाल किया जा रहा है, इस वजह से हमने अपने बच्ची का दाखिला आपके यहाँ कराया है कि हमारी बच्ची की नामूस और इज्जत महफूज रहेगी। वो सब धज्जियां उड़ रही हैं, मैं देख रहा हूँ, बैठा हूँ कमरे में, खिड़कियों से सब नजर आ रहा है, बड़े बड़े पार्क में सब बैठे हैं। उससे अब हम भी मुतासिर हो गए। लिहाजा इसी का नाम जो है वो तहजीबी इर्तिदाद है कि आप अपने तहजीब को भूल जाएं और दूसरे की तहजीब, और फिर भूलते भूलते एक दिन अख्तियार निकलता है। मैंने पहले दिन एक जुमला बोला था कि तहजीब का खत्म होने का मतलब अपनी शिनाख्त का खोना होता है, अपनी आइडेंटिफिकेशन आदमी क्या करता है, खो देता है। तो ये चौथी वजह है जिसकी वजह से तहजीबें क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। पांचवी वजह कि एक जुमला बोल रहा हूं, अनफा को बका है। क्या बोल रहा हूं, अनफा को बका है। जिस चीज में ज्यादा फायदा होगा, अनफा से मुराद नफा, जिसमें ज्यादा नफा होगा वो चीजें देर तक इस दुनिया में बाकी रहती है। बात तहजीबें इसमें ऐसी होती हैं जो इस्लामी तो नहीं होती हैं, लेकिन उसमें नफा होता है, कभी ذہنی तौर पर अय्याशी का नफा होता है, कभी माली नफा होता है, कभी तरक्की का नफा होता है। वो नफा लंबा खिंचता है, लिहाजा वो तहजीब क्या होती है, गालिब हो जाती है। और जिसमें नफा, ये अल्लाह की पॉलिसी भी है, ये अबुल कलाम आजाद का जुमला है कि अनफा को बका है। जैसे आपके साथ अल्लाह ताला ऐसा क्यों कर रहा है, पूरी दुनिया में मुसलमान क्यों परेशान है? अगर लिस्ट निकाली जाए कि कहाँ कहाँ आप परेशान हैं, तो कम से कम 20 25 ऐसे मुल्क होंगे जहां पे जंगी हालात में मुसलमान रह रहे हैं। वजह क्या है? मैं एक समझता हूं, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कि आप इस वक्त दुनिया के लिए नफा बख्श कौम नहीं रहे हैं।
अगर हम नफा बख्श कौम होते तो रब्बुल जलाल हमको इस हालत में नहीं लाता। जैसे शेर है, शेर से ज्यादा फायदा नहीं है, इतनी तंजीमें हैं शेर की हिफाजत के लिए, फिर भी शेर की तादाद रोजाना कम हो रही है। क्यों? अनफा को बका है, वो नफा बख्श नहीं है, इसलिए दिन पर दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, बकरी से बहुत ज्यादा नफा है? 60 से 65% लोग दुनिया में मटन खाते हैं, उसके बावजूद बकरी की तादाद कभी भी कुत्ते की तादाद से भी जो है वो कम नहीं हो पाती। कुत्ता खाने वाले दुनिया में कितने लोग हैं? 1-8% लोग होंगे। नागालैंड के लोग खाते हैं, चाइना के लोग खाते हैं, 1% लोग खाते हैं। 3 बच्चा देता है, 5 बच्चा देता है, 6, 8-8 बच्चे देते हैं कुतिया लोग, उसके बावजूद कुत्ते की तादाद बकरी की तादाद से हमेशा कम है। क्यों? बकरी अनफा है, इसलिए उसको बका नसीब है। कुत्ता उतना नफा बख्श नहीं है जितना कि बकरी नफा बख्श है। तो शेर को देखना, ऐसे सारी चीजों को आप देखेंगे तो आपको एक उसूल मालूम हो जाएगा। तो बात तहजीबें आती हैं, बनती हैं, उसमें नफा होता है, वो लंबी खिंच जाती है। जैसे आपके जीन्स की तहजीब आई, जीन्स पैंट की, ये लंबा चल रहा है, काफी दिन हो गया और ये भी चलेगा। वजह क्या है? इसको जैसे ज्यादातर कॉलेज के बच्चे पहनते हैं, काहिल होते हैं, हॉस्टल में धुलना नहीं है, प्रेस करें ना करें, धुलें ना धुलें, पता ही नहीं चलेगा कि साफ है कि गंदा है। अब अगर हम सफेद कपड़ा दूसरे दिन भी पहन लेते हैं तो क्या होता है, हमको महसूस होने लगा था कि कपड़ा गंदा हो गया है। अब वो कुर्ता पाजामा क्यों नहीं चल पा रहा है सफेद? क्योंकि उसमें क्या है, 2 दिन के बाद आपको उतारना है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, ना प्रेस करना। वैसे बात जीन्स ऐसी भी आती है, आपको मालूम है, धुली नहीं जाती, उसको पत्थर से रगड़ा जाता है, बड़ी महंगी होती है। पत्थर से रगड़ के उसको झटक देते हैं तो जैसे सोफा पर से जो है वो गर्द निकल जाती है, ऐसे गर्द निकल गई, फिर वो नहीं हो गई। तो वो जीन्स जो कामयाब हुई उसकी एक वजह। अच्छा, जल्दी से फटती नहीं है, जब तक फाड़ोगे नहीं तब आप थक जाएंगे, वो नहीं थकेगी। तो इसमें नफा ज्यादा हो गया, किसमें? जीन्स वाले में। लिहाजा इसको लंबा मिल गया। हम लोग जब 12वीं में पढ़ते थे तो एक फैशन आया, उसको बेल बॉटम कहते थे। क्या बोलते थे? बेल बॉटम पैंट था। तो इतना नीचे जो है ना, इतना लंबा चौड़ा होता था। अच्छा, अब वो जमीन पर जब तक न लथड़े तब तक मजा नहीं था। तो जमीन पर लथड़ने से वो नीचे क्या होता था, कट जाता था। तो उसका एक हल निकाला गया कि नीचे जिप लगा दी जाती थी पूरे, या कम से कम पिछले हिस्से में। लेकिन था वो बेकार। नतीजा क्या निकला, अब आपको बताना पड़ रहा है बेल बॉटम कैसे कह रहे हैं। जीन्स एक मरतबा भी मुझे नहीं बताना पड़ा, जीन्स भी उसी वक्त का आया हुआ है, तो उसका नफा नहीं है। लिहाजा वो फैशन क्या हो गया, वो तहजीब क्या हो गई, खत्म हो गई। एक उसी वक्त एक जमाने में एक और चीज आई थी, हम जब 11वीं 12वीं में पढ़ते थे, वो हिप्पीज्म था। बड़े बड़े लोग बाल रखते थे, जाहिल हैं, गवार हैं, लेबर का काम कर रहे हैं लेकिन हिप्पी बने घूम रहे हैं। अब उससे जुआ का होना, गंदा होना। अब जब एक आदमी लेबर का काम कर रहा है और बड़े बड़े बाल रखे, ऑफिस में बैठा रहे, दिन भर एसी रहे, तो बात समझ में आता है। अब उन्होंने भी रखना शुरू कर दिया। नतीजा क्या निकला कि पता चला 200-250 ग्राम गर्द उसी के अंदर रखी हुई है, वो खत्म हो गई, क्योंकि उसमें भी नफा नहीं था। तो पांचवी चीज क्या होती है कि कभी कभी कोई तहजीब ऐसी आ जाती है कि जिसके अंदर क्या होता है, नफा होता है। जब नफा होता है तो उसको क्या मिल जाता है, बका मिल जाता है, वो बाकी रहती है। तो ये पांचवी वजह होती है। छठी और आखिरी वजह, क्योंकि इन तहजीबों का मकसद रज़ाए इलाही नहीं। इस्लामी तहजीब का मकसद बुनियादी क्या है कि हम जो भी काम करें, जो भी तहजीब हो हमारी, उसमें रज़ाए इलाही होनी चाहिए। इस पूरी तहजीब में रज़ाए इलाही नाम की कोई चीज नहीं होती है। अब जिन चीजों में उनको तरक्की नजर आती है, उसी चीज को क्या कर दिया जाता है, तहजीब बना दिया जाता है। चाहे वो जायज हो, चाहे नाजायज हो, चाहे हलाल हो, चाहे हराम हो, इससे कोई बहस नहीं है। तो गोया छठी चीज इस पूरी तहजीब में क्या है, तरक्की को बुनियाद बना दिया गया। जिस चीज में भी तरक्की होगी वही हमारी क्या है, तहजीब है। और इस तरीके से उस तहजीब को डेवलप कर दिया जाता है। तो आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि इस पूरी तहजीब में इंसान को जो फायदा है, जो जो जिस चीज ने इनको बाकी रखा है और ये हम पर गालिब आ रहे हैं,
उसकी एक वजह यह है कि कुछ चीजें वाकई में नफा बख्श है और वो अल्लाह की रजा उससे हासिल नहीं होती, लेकिन नफा बख्श है, लिहाजा चूंकि खौफ खुदा नहीं होता है दुनिया के एक बड़े आबादी, लिहाजा उसमें उसको क्या मिल गया है, डेवलप हो गई। दूसरी वजह यह है कि अंधे को क्या चाहिए, दो आंख, भूखे को दो रोटी। एक भूखे से पूछा गया कि दो दो क्या हो, दो दो कितना होता है, उन्होंने कहा 4 रोटी। हालांकि दो दो पूछा था, रोटी का जिक्र नहीं था, वाले को भूखा था बेचारा तो बोल दिया दो दो 4 रोटी। ऐसे नौजवानों को क्या चाहिए, भाई आपसे इतना कहा जाता है कि आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन करते ना। कौन सा ऐसी ऐसी चीज है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कि बगैर मोबाइल के उनका गुजारा नहीं हो रहा है। वो जो ज़हनी अय्याशी है, जो नौजवानों को जो चीज पसंद है, उस चीज ने क्या किया है, इस पूरी तहजीब को बाकी रखा। अच्छा, वो शुरू होती है 15 साल से लेकर के और 50 साल के बाद इसको हो जाता है कि जो कुछ हो रहा है सही नहीं हो रहा है। अब 15 साल से 50 साल का अरसा कितना हो गया, एक लंबा अरसा हो गया। लिहाजा दूसरी बुनियादी चीज, ये जवानों को अय्याशी का पूरा इंतजाम करती है, लिहाजा ये तहजीबें क्या होती हैं, छा जाती हैं। और तीसरी बुनियादी चीज जो बताया आपको कि गालिब कौम जिस लिहाज से भी काम करेगी उसका हर काम अच्छा मान लिया जाएगा। और आखिरी बात, एक बात और, ये दुनिया में जो फैशन आते हैं ना, फैशन बनाने वाले कौन लोग हैं, औरतों के लिए जितना फैशन के डिजाइनर हैं दुनिया में 99% सब मर्द हैं। मर्द लोग डिजाइन करते हैं कि औरतें कपड़ा कैसे पहने। हमारी आंख को जो ठंडक पहुंचाती है हम उसको डिजाइन करते हैं और वही तहजीब बन जाती है। अगर औरत डिजाइन करे तो हो सकता है कि कुछ उसको शर्म हया क्या है बरकरार रहे, लेकिन हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है, हमको जो अच्छा लगे वो डिजाइन होना चाहिए। अब हमारी बीबियां क्या है, शौहरों से शौहरों के लायक कपड़े पसंद करती हैं, वो बोलती नहीं मैं खुद जाऊंगी। हालांकि जब आप बीवी हो गई किसी के, तो आप वो कपड़ा लाइए या वो कपड़ा पहनिए जो आपके शौहर को पसंद है, लेकिन शौहर का लाया हुआ कपड़ा कभी नहीं पसंद पहनेंगी, उनको जो पसंद है वो पहना जाएगा। अब पैसा तुम्हारा होता है, कपड़ा भी आप लेकर आते हैं और आंख दूसरे लोग सेकते हैं पार्टी में। हमें जिसका पैसा है वो आंख सेके, अच्छा है ना, पैसा किसी का हो आंख दूसरा सेके, ये तहजीब आपने डेवलप कर दिया उठा करके। हमारे घर में रहेंगी औरतें, ऐसा जैसे लगता है कि काम करने वाली, मतलब कभी कभी बाहर का आदमी आ जाए तो समझेगा कि यही काम करने वाली है जिनसे वो मुलाकात करने आई है। क्यों? क्योंकि उनको ये बताया ही नहीं गया है। हमारे नबी के के जमाने में एक मरतबा मुलाकात सिर्फ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक औरत की हो गई। उनके हाथ में कुछ नहीं था, मेहंदी वेहंदी हम सादा। उन्होंने ये क्या क्या शौहर नहीं है क्या है? हमारे यहाँ इस चीज को कोई मायूब ही नहीं समझा जा रहा है। अरब दुनिया में माशाल्लाह ठीक है, लेकिन भारत के लोग दूसरों को दिखलाने के लिए हमारी औरतें कपड़ा खरीदती हैं, अपने लिए नहीं। मेरी एरिया है, जमाना हो गया, तो बोलती है आप जो कपड़ा लाएंगे मैं वो पहनूंगी, अगर आपको नहीं पसंद है तो बकिया कोई फायदा नहीं है। मैं खुद लाता हूँ कपड़ा, गोश्त मैं लाता हूँ बाजार से और कपड़ा लाता हूँ, क्योंकि मुझे किसी का लाया हुआ गोश्त पसंद नहीं है। कपड़ा में, और कभी वो नहीं कहती हैं कि यही डेवलप करो कल्चर, ये कल्चर डेवलप होगा तब जा करके। अब इन चीजों में ऐसा करने की वजह से दूसरी तहजीबें हम पर गालिब हो गई। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आगे बात करेंगे। यहाँ पर ये बात खत्म हुई है। अल्लाह ताला